Okay, hello everyone. Today we are continuing with the same chapter. This lever part we have already discussed. So let me remind you once again. So lever is of three type: first class lever, second class lever, and the third class lever. You know that by learning the spelling, this spelling flea, we can define these kind of lever. So first class lever means that the fulcrum is between load and effort. Second class lever means that load is between fulcrum and effort, and third class lever means that effort is in between fulcrum and load. And we also know that the mechanical advantage and velocity ratio is equals to 1 in the first class lever. The mechanical advantage and velocity ratio is greater than 1, and mechanical advantage and velocity ratio is less than 1 in the third class lever. This we already know. After this, let us move to the next topic, that is pulley. But before that, what is the principle of this lever? The principle of lever says you that load into load arm is equals to effort into effort arm. That means load multiplied by load arm and effort multiplied by effort arm, they are equal. This is the principle of lever. This principle helps you in solving the numericals, which we do later on. Now after this, let us start with the pulley. Now what is pulley? Pulley is nothing but it is the metallic or a wooden disc with grooved rim. Okay, so it is metallic or wooden disc with grooved rim. Pulley rotate about an axle passing through its center. Axle is fixed to the frame or the block. So what is pulley? Metallic disc है, rim कैसा है? Grooved rim है, and sometime it is fixed and sometime it is movable. अगर fix है तो उसको fix pulley we can say, movable है तो we can call it a movable pulley. तो सिंगल फिक्स पुली, इफ यू टॉक अबाउट द सिंगल फिक्स पुली, तो सिंगल फिक्स पुली मीन्स कि सिंगल पुली है जो फिक्स है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो इट इज कॉल्ड द सिंगल फिक्स पुली. ओके, नेम ही उसका सजेस्ट कर रहा है कि वो इट इज नॉट मूविंग, इट इज फिक्स्ड. नाउ आफ्टर this, let us see what is block and tackle system of pulley. Block and tackle system में हम लोग क्या करते हैं? We are using more than one pulley. That means we can use 4 pulley, we can use 3 pulleys, or we can use 5 pulleys or 6 pulleys also. MA और VR accordingly नंबर ऑफ पुलिस के अकॉर्डिंगली आएगा. वेट हम लोग अटैच कर देते हैं. इट इज अटैच विद द बॉटम. द लास्ट पुलिस के साथ हमने वेट अटैच कर दिया. ऊपर वाला पार्ट क्या है? इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक पार्ट. एंड नीचे वाला पार्ट क्या है? टैकल पार्ट. एफर्ट वी कैन अप्लाई फ्रॉम हेयर और वी कैन अप्लाई फ्रॉम हेयर. ठीक है, डिपेंड करता है कि हम लोग रोप उसमें डाल रहे हैं तो हाउ वी आर पुटिंग द रोप. सो इट्स डिपेंड्स ऑन दैट. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. सो इसमें भी हमें तीनों चीजें निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द MA, वी हैव टू फाइंड द VR, वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी. सो वी कैन फाइंड इट आउट बाय फाइंडिंग द लोड, एफर्ट, और अकॉर्डिंगली जैसे मैंने पहले बताया कि इट विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पुलीज इन मैक्सिमम केसेस. ठीक है, बट इन सम केसेस इट्स वेरीज, एंड हाउ इट्स वेरीज दैट वी विल डिस्कस when the schools reopen, because I cannot explain that thing in this small video. So now after this, let us move to the inclined plane. The inclined plane is the special type of plane, or you can say a plane which is inclined at a particular angle. किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक मैंने प्लेन को इंक्लाइन कर दिया तो क्या बन गया है? वो इंक्लाइन प्लेन बन गया. इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा? लोड है, वी कैन नॉट लिफ्ट दिस लोड. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कैरी दिस लोड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रैगिंग इट ऑन अ इंक्लाइंड वे. ऐसे करके इंक्लाइंड वे में मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ. ओके, सो लोड पे क्या होगा? अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लोड में क्या होगा? द लोड में 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विल एक्ट. फर्स्ट, इसका जो वेट है इट्स एक्ट डाउनवर्ड. इसका वेट डाउनवर्ड एक्स में डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एक रिएक्शनरी फोर्स लगेगी विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, और एक हम लोग एफर्ट लगाएंगे. ओके, एक एफर्ट लगाएंगे विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज टू मूव दिस लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब इसको लोड के मैंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड. द लोड इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट, L cos थीटा एंड L sin थीटा. जो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. और वर्टिकल कंपोनेंट वी कैन से कि L cos थीटा R उसको बैलेंस कर देगा. सो दैट मीन्स दे विल कैंसिल आउट. सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, बिकॉज R इसको कैंसिल कर देगा. दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, और दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. E एफर्ट लगा रहे हैं, E विल बी इक्वल्स टू L sin थीटा. दैट मीन्स कि इतना हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन
move this load upward in the upward direction. इसमें क्या करना है, अगेन द थ्री थिंग्स वी हैव टू फाइंड, एक तो एम ए फाइंड आउट करना है, एक वी आर फाइंड आउट करना है और एक एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें यूजफुल डिस्टेंस हम लोग कितना मूव कर रहे हैं. तो यूजफुल डिस्टेंस कितना है, h है, और अनयूजफुल डिस्टेंस से सपोज इट इज ए सी, वी कैन से इट एज एल, इसको हम लोग एल कहते हैं. नाउ अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में ये होगा तो नंबर वन तो नो फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट करेगी तो देन इन दैट कंडीशन जो एफर्ट है हमारा वो एल साइन थीटा नहीं होगा. दैट मीन्स some more effort we have to use. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में R इक्वल्स टू एल कॉस थीटा के हो जाएगा, एफर्ट इक्वल्स टू एल साइन थीटा के हो जाएगा. सो दे आर इक्वल, दैट मीन्स मुझे फाइनली जो एफर्ट लगाना है वो कितना लगाना है, एल साइन थीटा लगाना है. डिस्टेंस वी नो कि कितना मूव कर रहे हैं, इट विल बी एल, इट इक्वल्स टू ए सी, और जो यूजफुल डिस्टेंस है वी नो कि इट इज एच. नाउ एम ए निकालते हैं. एम ए मुझे पता है कि एम ए इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट. सो लोड एंड एफर्ट कितना लगाया मैंने, एल साइन थीटा लगाया, एल गेट कैंसिल विद दिस एल. सो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन, वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन थीटा. फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा. मैंने ट्राइंगल ए बी सी से साइन थीटा की वैल्यू निकाली, एंड वी नो बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वी नो कि परपेंडिकुलर कितना है, एच है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, एल है. तो इट विल बी एच अपॉन एल. सो इस वैल्यू को वी कैन पुट इट इन द अबाव इक्वेशन. सो वी हैव पुट इट इन द अबाव इक्वेशन, एल से एल गेट कैंसिल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एल अपॉन एच. सो दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज विच वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ आफ्टर दिस वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करना है तो अगेन द सेम थिंग. सो इट विल बी डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड. डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट कितना है, इट इज एल, एंड डिस्टेंस मूव बाय द लोड कितना है, इट इज एच. सो अगेन इट विल बी एल अपॉन एच. एफिशिएंसी निकालनी है तो वी नो बाय द रिलेशन के दैट एफिशिएंसी इक्वल्स टू एम ए अपॉन वी आर. सो एम ए अपॉन वी आर मीन्स के एम ए की वैल्यू कितनी है, इट इज एल अपॉन एच, दैट इज यूजफुल डिस्टेंस अपॉन अनयूजफुल डिस्टेंस, एंड अगेन वी आर विल बी यूजफुल डिस्टेंस अपॉन अनयूजफुल डिस्टेंस. दे गेट कैंसिल्ड फ्रॉम बाय ईच अदर बिकॉज द वैल्यूज इज सेम, सो दैट दे गेट कैंसिल्ड विद ईच अदर. सो फाइनली द आंसर विल बी 1. दैट मीन्स एफिशिएंसी इज 100%. ओके, 100% एफिशिएंसी कब आएगी, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन होगी तब एफिशिएंसी इसकी 100% नहीं आएगी, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द एफर्ट इज यूज्ड टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्सेस. Okay, so this is all for today. Now after this you can continue with question answers of this chapter. Okay, if you have any problem you can ask me your problems on the WhatsApp. Okay, because no other medium we are having now, so you can ask me your problems on the WhatsApp only. So I will try to solve your problems. So thank you very much. Start with question answers today.